بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ تو بچوں، ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس مضمون جغرافیہ جماعت ہے، ہمارے پاس ہفتم یعنی 7 کلاس کے ہم نے جغرافیہ کا جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں لیکچر 1 کی سمری کی طرف، یعنی ہمارا خلاصہ کیا تھا۔ جو پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ باب اول کا تدریسی مقاصد، یعنی اس کی جو تدریسی مقاصد تھے، اس باب کو پڑھنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے زمین کے اندرونی ساخت یعنی انٹرنل اسٹرکچر جو ہے وہ ارتھ کا پڑھا، یعنی زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، مطلب زمین کے اوپر تو ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم نے پڑھا اس میں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے زمین کی جو 3 تہ ہیں، اندرونی طے ہو گیا ہے، درمیانی طے ہو گئی ہے یعنی حصہ ہو گیا ہے، یا بیرونی طے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تینوں کی تینوں جو ہے زمین کے اندرونی ساخت ہے، اس کے بارے میں پڑھا، یعنی اندرونی طے میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح درمیانی طے میں کیا چیز ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے بیرونی طے میں ان میں سے ہم نے وہ بھی پڑھے کہ بیرونی طے میں کون کون سے میٹلز ہیں، اندرونی والے میں کون سے ہیں، اور اسی طرح جو ہے درمیانی والے میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھے۔ آخر میں ہم نے زمین کی طبقاتی حرکات یعنی پلیٹس ٹیکٹونکس کیا چیز ہوتی ہیں، زمین جو ہے وہ حرکت کیوں کرتی ہے وہ ہم نے پڑھا۔ تو یہ تو ہمارے پاس لیکچر 1 تھا جو ہم نے پڑھا تھا، تھوڑی سی ہم نے اس کی سمری جو ہے آپ کو دے دی۔ اب آتے ہیں لیکچر نمبر 2 کی طرف۔ لیکچر نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے بک کو سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو باب اول ہے، صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 6، اس پہ ہمارے پاس ہے دراڑیں، فالٹس اور ان کی اقسام۔ سطح زمین پر مختلف خدوخال زمین کے اندرونی اور بیرونی قوتوں کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں۔ ان خدوخال میں دراڑیں، فالٹس بھی شامل ہیں۔ خول یا سطح زمین کے کسی حصے میں دباؤ، سٹریس یا تناؤ، ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے زیر سر بڑی سے بڑی چٹانیں بھی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں، یعنی حرکت کرنے لگتی ہیں یا جو ہے وہ نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے دراڑیں یعنی پیدا ہوتی ہیں۔ بعض دراڑیں کئی 100 کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دراڑیں کے ہم کہہ سکتے ہیں فریکچر، ٹھیک ہے، زیادہ تر ہوتا ہے یہ اندرونی یعنی کور، اور بیرونی سائڈ پہ یعنی کرسٹ پہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کس زمین کے کسی بھی حصے میں دباؤ کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، یعنی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی کبھی جگہ پہ زمین پہ تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ نیچے زمین کے اندر خاص طور پر جو ہے جو مینٹل ہے، کیونکہ مینٹل اور کرسٹ جو ہمارا ہے بالکل اس کے درمیان میں فاصلہ ذرا کم ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے مینٹل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس زلزلے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ زیادہ تر ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس دراڑیں ہوگی، پھر وہ کیا کہتے ہیں، دراڑیں فالٹس کی 3 اقسام ہیں۔ عام دراڑ یعنی نارمل فالٹس، الٹی دراڑ یعنی ریورس فالٹ، اور آخر والی ہے پہلوی دراڑ یعنی لیٹرل فالٹس۔ یہ کیا کیا ہوتی ہیں اب ہم ایک ایک کر کے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ 7 ہے، باب اول ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس عام دراڑ یعنی نارمل فالٹ۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تناؤ یعنی ٹینشن سے دراڑ کی ایک طرف کا ٹکڑا بلاک عمودی حرکت کی صورت میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف کا بلاک جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے یا نیچے سرک جاتا ہے۔ اس اگر تصویر میں دیکھیں تو اس میں سے جو ایک حصہ ہے وہ بالکل نیچے کی طرف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے کی طرف ہے زمین کے اندر جو ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ والا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو دراڑیں ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عام دراڑ، یعنی اس میں ایک حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے جبکہ دوسرا والا حصہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، بلاک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عام دراڑ یعنی نارمل فالٹس ہوتی ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس صفحہ نمبر 7 پہ ہی ہے ہمارے پاس الٹی دراڑ یعنی ریورس فالٹ۔ بعض اوقات دراڑ کی ایک طرف کا ٹکڑا یا بلاک دو طرفہ دباؤ کے باعث دوسری طرف سے کے بلاک سے جو ہے اوپر آ جاتا ہے، اسے الٹی دراڑ کہتے ہیں۔ اب یہ والا جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے، یہ والا جو ہے پہلی والی میں ہے ہمارے پاس عام دراڑ، اس میں وہ نیچے کی طرف آ گیا تھا، جبکہ یہاں پہ جو ہے یہ اوپر کی طرف گیا ہے، اس کو انہوں نے ریورس دراڑ کا نام دیا ہے۔ یہاں لکھا بھی ہوا ہے اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں، یعنی یہ والی جو ہے یہ اوپر کی طرف ہے جبکہ یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، پہلی والی دراڑ میں جو ہے یہ نیچے کی طرف آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ اوپر کی طرف ہے، تو یہ بھی جو ہے ہمارے پاس دراڑ کی ایک خاص قسموں میں آتا ہے۔
अब बात करेंगे सफ़ा नंबर 7 पे, इसकी तीसरी किस्म है वो है पहलवी दरार, जिसको हम कहते हैं लैटरल फॉल्ट्स, यानी आर्जी कुव्वतें जो होती है, टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती हैं, वो दरार के दोनों तरफ के ब्लॉक को एक दूसरे के मुखालिफ यानी ऑपोजिट जो है उसके सिम में हरकत देती हैं, ऑपोजिट सिम में जो है वो हरकत करती रहती हैं। ये दरार जो है वो बहुत लंबी भी हो सकती हैं, यानी इसमें एक देखें तो ये अपनी जगह पे जो है कायम है, मतलब ये उधर की तरफ जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा बल्कि इधर की तरफ है, जबकि ये वाला जो है उधर है। पहले वाले में जो है एक वाला नीचे की तरफ चला गया था, दूसरे वाले में जो दरार थी उसमें वो ऊपर आ गया था। अब ये वाली जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम पहलवी दरार यानी लैटरल फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये तो बच्चों हमारे पास दरारें थी और उसकी इकसाम थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि साथ में आपने बुक का मुतालिया भी जो है वो जारी रखना है, साथ साथ में आपने किताब को भी देखना है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इस तरह की होती हैं जिसमें से बहुत ज्यादा जो है वो बहुत जल्दी, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिलसिला जो इनका दरारों का होता है, और ज्यादातर जो है वो प्लेट्स जो है वो नीचे घुसना शुरू हो जाती हैं, सख्त दबाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत टूट फूट हो जाती है, दरारें जो है एक निज़ाम बन जाता है। और यहाँ पे भी बन ही रहा है, थोड़े थोड़े वक्फे पर जो है वो ज़लज़ले भी ज्यादातर आते रहते हैं, ज्यादातर जो है वो सिलसिले होते हैं। पाकिस्तान में जो मशहूर फॉल्ट्स हैं आप देख भी सकते हैं, जहलम है हमारे पास, कालाबाग फॉल्ट है, इसी तरह चमन फॉल्ट भी है, सॉल्ट रेंज भी है, कराकोरम फॉल्ट भी है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉल्ट थी। अब आते हैं सफा नंबर 9 पे, जो हमारे पास है उन्वान है ज़लज़ला। इसको आप जानते भी होंगे, आपने महसूस भी किया होगा अक्सर औकात, ठीक है, अर्थक्वेक जिसको कहा जाता है। इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। जमीन की तबकाती हरकत, प्लेट्स टेक्टोनिक्स की बात कर रहा है कि जो प्लेट्स होती हैं जमीन के अंदर वो मूवमेंट करती रहती हैं, यानी आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। हरकत की वजह से जमीन कहीं बैरूनी तह के हिलने से जो है वो हल्के और शदीद झटके महसूस होते हैं, उन्हें ज़लज़ले कहते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल जो है प्लेट्स की यानी बैरूनी तह क्रस्ट में जो है वो हल्के से हमें महसूस होते हैं, प्लेट्स की जो है हरकत होती है तो उन्हें ज़लज़ले कहते हैं। ये आते कैसे हैं, यानी इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसमें एक हमारे पास है कन्वेंशन करंट। ये कन्वेंशन करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ जो है वो एनर्जी है, यानी वन प्लेस से लेके दूसरे प्लेस में जो है वो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये जो है क्या होता है, यानी कन्वेंशन करंट जो है वो पास होता है। कन्वेंशन करंट को ज्यादातर हम कन्वेंशन सेल भी कहते हैं। ये जमीन के मेंटल हिस्से में, मेंटल का मतलब होता है दरमियानी हिस्से में जो है ये मौजूद होती है। ये सर्कुलर मोशन में जो है वो मूव करती रहती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर जो मैग्मा है वो जब निकलता है तो इस फॉल्ट्स के जरिए से ही वो निकलता है। तो तभी वो कहते हैं कि जब शदीद झटके आपको महसूस हों, ठीक है, और जमीन जो है वो हिलने से जो शदीद झटके महसूस होते हैं उन्हें हम ज़लज़ला कहते हैं। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा तबाही का जो है वो मंजर लेकर आती है, निहायत से ज्यादा जो है वो तबाही जो है बना देती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, ये क्या कहता है, उन्वान है हमारे पास मरकज़ ज़लज़ला, यानी मरकज़ ज़लज़ला क्या होता है। सफ़ा नंबर 11 पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फोकस, एक है एपी सेंटर, एक हमारे पास है फॉल्ट कर्व, ठीक है। यानी हमारे पास मरकज़ ज़लज़ला जिसको हम कह सकते हैं कि दरार जो है इससे पैदा होती है। ये देखें यहाँ पे जहां से ज़लज़ला शुरू होता है, ठीक है, इसे हम फोकस यानी मरकज़ ज़लज़ला भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी गहराई को जानता है। साथ में एपिक भी जो होता है हमारे पास, यानी मरकज़ बाला, जहां से इसको कहा जाता है, वो भी चीज शामिल होती है, ठीक है। यानी जमीन की गहराई से जिस मकाम में ज़लज़ले की इब्तिदा होती है उसे मरकज़ ज़लज़ला कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेस्मिक फोर्स भी इसको कहा जाता है। ये सबसे पहले जो है मरकज के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, जिस जगह महसूस किया जाता है उसे मरकज़ बाला कहा जाता है, यानी एपिक सेंटर इसको कहा जाता है। यानी जहां पे ज़लज़ला जो है सबसे पहले मरकज के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, इस जगह को हम इसको क्या कहते हैं, एपिक सेंटर यानी मरकज़ बाला कहा जाता है। यहाँ फॉल्ट भी आप देख रहे हैं, इस ज़लज़ले की वजह से जो फॉल्ट पैदा हुई हैं ये आपको नजर आ भी रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास से क्या, यानी अर्थक्वेक की वजह से सिस्मिक वेव्स जो होती हैं रेडिएट्स होती हैं फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, यानी मरकज़ बाला जिसे हमने पढ़ा अभी, इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ज़लज़ला पैमाने के आलात, यानी ज़लज़ला को जो मेजर करते हैं वो कौन कौन से आलात हैं हमारे पास। वो हमारे पास सिस्मिग्राफिक भी इसको कहा जाता है, सिस्मिमोटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इसका खास किस्म का आला जो है वो नस्ब किया जाता है। ये इसकी पिन होती है, आप देख रहे हैं कहीं पे ये लाइन जो है बिल्कुल ऊपर हो जाती है, कहीं पे नीचे हो जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमें ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस बताती है, ठीक है। यहाँ पे ज़लज़ला पहले कम था, अब बहुत ज्यादा हो गया तो लाइन्स काफी ज्यादा हो जाती है, फिर लाइन कम हो जाती है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है ज़लज़ला कम था,
झटके इसके कम थे, फिर अगर ज़्यादा हो जाती है तो झटके जो है इसके वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ये भी है, अगर आप देखें तो ये हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि मूवमेंट जो है वो हो रही है और साथ में जो है वो ज़लज़ले यानी हल्के हल्के झटके या शदीद झटके जो है वो इसके महसूस किए जा रहे हैं। ये इसका विंड कहलाता है, ये वेट है, यहाँ पे हमें वो बताता है। ये पूरे इसकी जो है वो क्या है, हमारे पास एक मेजरमेंट है जिसको ज़लज़ले मापने के जो आलात कहा जाता है, ये सिस्मोग्राफ भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ज़लज़ले पैमाना सिस्मोमीटर भी इसको कहा जाता है। और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, जैसे ही ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं उसके थोड़ी देर बाद हमें बता दिया जाता है कि इतनी शिद्दत से ये ज़लज़ला आया था। तो वो यहाँ से रीडिंग्स इसकी लिए जाते हैं, यानी यहाँ से इसके जो है अदाद व शुमार लिए जाते हैं कि कितने जो है वो शिद्दत का ज़लज़ला था, ठीक है। तो इसके फिर असरात क्या हो जाते हैं, जब ज़लज़ला आ जाता है तो उसके असरात जो हैं यानी इफेक्ट्स ऑफ जो ज़लज़ले होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसका जो है मिट्टी के तौदे गिरते हैं, क्योंकि वो ज़मीन को पूरी हिलाते हैं, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो हिल जाते हैं, यानी जो खुशकी के टुकड़े हैं जैसे हम कहते हैं, जिसपे हम कि हमारी आबादी है तो वो उसके जो है मिट्टी के तौदे गिर जाते हैं। अक्सर सड़कें और पुल जो हैं वो टूट जाती है, यानी राब्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। आम ज़रफ़ का सिलसिला जो है मुनक़ता हो जाता है, यानी बीच में जो है वो लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है क्या हो जाता है कि दरमियान में एक जो है वो एक रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो दूसरी जगह जाना होता है वो नामुमकिन हो जाता है। बहुत सा जानी नुकसान भी होता है इससे, ठीक है। और दोबारा आबादकारी इसकी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक चीज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ज़लज़ले की अक्सर जो है वो शिद्दत की वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी तबाहकारियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब आखिर में आते हैं सफ़ा नंबर अवल का जो लेक्चर नंबर 2 था हमारे पास, पेज 6 से लेकर 13 तक, उसका थोड़ा सा खुलासा यानी समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने दरारें पढ़ी, उसकी अकसाम को पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ज़लज़ला पढ़ा कि ज़लज़ला क्या होता है, ये किस तरह वजूद में आता है, कन्वेंशन करंट्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद मरकज़ ज़लज़ला यानी मरकज़ ज़लज़ला किसको कहते हैं, यानी एपिक सेंटर जिसको हम कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है जहाँ पे ज़लज़ले को जो है वो बिल्कुल मरकज़ की एन ऊपर आ जाता है, उसको मरकज़ ज़लज़ला भी कहते हैं। और आखिर में हमने ज़लज़ले के असरात पढ़े कि ज़लज़ले से जो तबाहकारियाँ होती हैं, आमतौर जो है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा जानी नुकसान होता है, उसके दोबारा जो है आबादकारी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सारा का सारा हमें क्या कहलाता है, ये हमारे पास जो था आज का लेक्चर नंबर 2 का जो है वो खुलासा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। किताब का मुतालिया साथ में जारी रखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो समझ आ सके अपने उन्वान की। आखिर में वही बात, अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि आप जहाँ रहें खैरियत से रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।